Students, today we will study the third lesson of the book Flamingo. The name of the lesson is Deep Water and it has been written by William Douglas. And here in the lesson, the writer has described how he developed a fear of water and how he overcame it. So let's start. Deep Water, about the author William Douglas. His full name was William Orville Douglas. He was born in 1898 and he died in 1980. He was born in Maine, in Minnesota, USA. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima is a county in the USA. He worked as a teacher. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt was the 32nd President of the USA. He met him at Yale and became an advisor and friend to the President. Douglas was a leading advocate of individual rights. He wanted that every individual should have his own rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remaining the longest serving justice in the history of the court. Here I would like to tell you that he was the youngest justices appointed to the court in the USA, and he was appointed a justice at the age of 40. So he was the youngest justice appointed there. See, he served for 36 years, and the following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. Excerpt means extract. This lesson is an extract from his book Of Men and Mountains, and here in this extract, he has described how he was about to get drowned in a swimming pool. कैसे वो एक swimming pool में डूबने ही वाले थे. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part, autobiographical means written by a person himself, part of the selection is used to support his discussion of fear. Because he has undergone that fear, so the way he has described his fear, it supports, it makes us believe, right, the what kind of fear he had undergone, or really he had undergone the fear. Notice these words and expressions in the text, infer their meaning from the context. Let's have a look at these words, and as and when they come in the text, I will explain you their meaning. Treacherous, subdued my pride, flailed at the surface, fishing for landlocked salmon. Misadventure, bobbed to the surface like a cork, curtain of life fell, back and forth across the pool. Again, this lesson is written in the first person. William Orville Douglas is telling us about his experience. It had happened when I was 10 or 11 years old. Writer is recalling that he must be 10 or 11 years old when this thing had happened to him. I had decided to learn to swim. Writer ने decide किया कि वो swimming सीखेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. YMCA जो वहाँ पे club था वहाँ in Yakima, वहाँ पे swimming pool था, तो it offered this opportunity of learning to swim there. The Yakima River was treacherous. The Yakima River एक tributary है of the Columbia River in the Yakima County in the USA. It was treacherous. Treacherous means it was a cheater, right? जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, धोखेबाज. Mother continually warned against it. See, M is written in capital. So instead of mentioning his mother's name, he has written M in capital. तो उनकी मम्मी उनको बार बार वार्न करती रहती थी कि नदी में जाके स्विमिंग नहीं करनी है, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, राइट. मम्मी उनकी बहुत कंसर्न थी, तो वो उनको बार बार, राइट, जो भी वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते थे, डूब जाते थे लोग, वो उनको रिमाइंड कराती रहती थी सो दैट राइटर डजंट गो देयर टू स्विम. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन वो जो क्लब में पूल था वो तो सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो, एंड शैलो मीन्स जहाँ जहाँ डीप नहीं होता. एवरी स्विमिंग पूल इज़ लाइक दिस. तो 2 से 3 feet शैलो एंड पे उसकी डेप्थ थी, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो डीपर एंड था वो 9 feet था, लेकिन और ये जो ड्रॉप था फ्रॉम 2-3 feet to 9 feet, इट वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. राइटर ने, छोटे बच्चे जब स्विमिंग सीखते हैं तो दे आर वेरी एक्साइटेड, दे बाय वाटर विंग्स ऑल्सो, राइट, विच कैन बी वोन ऑन द आर्म्स, which helps them remain afloat on the water. So राइटर ने भी वो ख़रीदे और वो पूल पे चला गया स्विमिंग सीखने. I hated to walk naked into it. When you
go to a swimming pool to learn swimming, you wear a swimming costume. तो राइटर ने भी यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, स्विमिंग ट्रंक. तो राइटर को स्विमिंग ट्रंक में वहाँ स्विमिंग करने जाना, उसको ही हेटेड दिस थिंग. एंड शो माई स्किनी लेग्स. स्किनी मीन्स थिन लेग्स. राइटर की थिन लेग्स होंगी तो उनको वो दिखाने में वहाँ शर्म आ रही थी. बट आई सबडूड माई प्राइड एंड डिड इट. सबडूड मीन्स मेड वीक, या यहाँ पे ही ओवरकेम हैज़ प्राइड, कि कोई बात नहीं, मेरी शान कम होती है, मैं पतला हूँ, कोई बात नहीं. बट ही went ahead to learn swimming. From the beginning, this paragraph is very important. However, I had an aversion to the water. Aversion means dislike. Writer कहते हैं शुरू से ही उनको dislike थी पानी से, जब भी वो पानी के अंदर होते थे. This started when I was 3 or 4 years old. जब वो 3 और 4 साल के थे, ये dislike तब से शुरू हो गया था. And father took me to the beach in California. इनके फादर इनको कैलिफोर्निया बीच पे ले गए. He and I stood together in the surf. Surf means जो लहरें आती हैं पानी की, वेवी, फोमी सी. ये अपने फादर के साथ खड़े थे. I hung on to him because he was just 3-4 years old, तो he was clinging to his father. अपने फादर को पकड़ के खड़े थे. Yet the waves knocked me down and swept over me. कहते हैं तब भी एक वेव आई और वेव इनको धक्का देके जैसे इनको नीचे गिरा दिया और इनके ऊपर से निकल गई. आई वॉज बेरिड अंडर इन वाटर. ये कहते हैं मैं दब गया था पानी के अंदर. माई ब्रेथ वॉज गॉन. और थोड़ी देर के इनको लगा कि शायद सांस भी नहीं आ रही है. आई वॉज फ्राइटन. ये डर गए थे. फादर लाफ्ड. लेकिन इनके फादर हंसने लग जाते हैं. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द waves. Students, here you need to know that जो waves होती हैं वो बहुत powerful होती हैं. Water has a lot of force in it. तो वही जब राइटर ने रियलाइज़ किया कि जो waves हैं वो कितनी forceful हैं, they can overpower us. So he developed a fear, a terror of the waves in his heart. This paragraph is very important. It often comes in exams also. How he developed fear of water. So the first example is when he was just 3 and 4 years old child, he was taken to a beach in California where a wave had overpowered him and he had developed a fear of the same. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories. और जब ये उस स्विमिंग पूल पे गए तो स्विमिंग सीखने के लिए, तो वो रिवाइव मीन्स टू ब्रिंग बैक. वो मेमोरीज, वो 3-4 ईयर एज वाली, वो फिर से इनके माइंड में आ गई. एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर. स्टर्ड मतलब इट मूव्ड, इट ब्रॉट बैक. वो जो उनके बचपन का फियर था वो फिर से इनके मन में आ गया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. जो बचपन में पानी का फियर, या फिर जब लोग स्विमिंग करने जाते हैं उनको होता है हम कहीं पानी में डूब ना जाएं. बट ही वॉज एबल टू गैदर कॉन्फिडेंस. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. पैडल्ड मीन्स टू वॉक इन वाटर. ये अपने वाटर विंग्स पहन के पानी में उतरे और चलने लग गए. वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. एपिंग मीन्स कॉपीइंग देम. तो ये बाकी बच्चों को देख के कि बाकी बॉयज़ क्या कर रहे हैं और उनको कॉपी करने लग गए. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. ये जब 2-3 बार गए, राइटर कहते हैं मैं वहाँ 2-3 बार गया और मैंने ऐसे ही किया जैसे बाकी बॉयज़ कर रहे थे, उनको इमिटेट करते थे ये. और फिर उसके बाद ही स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल ईजी व्हेन ही वाज इन वाटर. और उसी के बाद जो मिस एडवेंचर है वो हो गया. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मिस एडवेंचर इट मीन्स जो एक्सीडेंट इनके साथ हुआ. आई वेंट टू द पूल. The whole description of the misadventure that struck him is very important. I went to the pool when no one else was there. राइटर कहते हैं कि ये पूल में गए जब वहाँ कोई भी नहीं था. The place was quiet. बिल्कुल शांत थी जगह. The water was still. क्योंकि पानी में कोई नहीं था स्विमिंग पूल में, तो पानी बिल्कुल still था without any movement. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. स्विमिंग पूल के में टाइल्स लगी होती हैं, आजकल ब्लू लगती हैं, तो उस टाइम वाइट होंगी. तो ही सेज कि जो वाइट जो टाइल्ड बॉटम था वो बिल्कुल
क्लीन था जैसे बाथ टब हो, और वो नज़र भी आ रहा था. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. टिमिड मतलब वीक, राइट. इनको डर लग रहा था कि मैं अकेला कैसे जाऊं पानी में. सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. ये पूल के साइड में बैठ गए और किस बाकी आएंगे तब ये भी पानी के अंदर जाएंगे. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूइजर ऑफ अ बॉय. राइटर कहते हैं अभी मैं बहुत ज़्यादा देर भी वहाँ नहीं बैठा था कि तब एक बिग बड़ा सा ब्रूइजर होता है, अ टफ एंड अग्रेसिव पर्सन हैविंग अ मस्कुलर बॉडी. ऐसा एक लड़का वहाँ आया, probably 18 years old. शायद वो 18 years का था. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. राइटर कहते हैं he was a well built boy, right? He had thick hair on his chest. और उसका बहुत he was a handsome personality, right? He had a good physical body. और लेग्स और आर्म्स में भी रिपलिंग मीन्स कमिंग आउट मसल्स थी उस बॉय की. ही येल्ड मीन्स ही शाउटेड. हाई स्किनी बिकॉज राइटर वॉज वेरी थिन. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. जैसे डक फ्लोट करती है ना पानी में, उसने राइटर से पूछा, हाई स्किनी, तुम पानी में कैसे तैरना चाहोगे या पानी के अंदर कैसे जाना चाहोगे. With that he picked me up and tossed me into the deep end. और ऐसा बोल के उसने मुझे उठाया और पानी का जो डीपर एंड था 9 feet डीप एंड उसमें मुझे धक्का दे दिया, गिरा दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. राइटर कहते हैं जैसे वो पूल के बाहर बैठे हुए थे वैसे कि वैसे सिटिंग पोजीशन में वो पानी में आ गए. ही swallowed वाटर. पानी उनके अंदर मुंह में जा रहा था. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और एकदम से वो बॉटम में पहुंच गए पूल के. आई वॉज फ्राइटन्ड. स्टूडेंट, दिस डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ ही फेल्ट while he was going down, while he tried to come up, and then he went down again, he tried to come up, then again how he while he was going down in the pool. So you need to pay attention to each and every line and his physical and emotional state also. He says he was frightened. I was frightened. मैं डर गया था. But not yet frightened out of my wits. विट होता है ability to think quickly. मैं डर तो गया था लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं जो मेरी ability थी कि मैं जल्दी से कुछ solution ढूंढूं या react करूं सिचुएशन में, वो अभी भी मेरे पास थी. On the way down I planned. जैसे वो नीचे जा रहे थे पूल में, he made a plan. When my feet hit the bottom I would make a jump, big jump. कि जैसे मेरे पैर नीचे टाइल फ्लोर को टच करेंगे तो ही विल बाउंस बैक, ऊपर को जंप करेंगे. कम टू द सरफेस, पानी के सरफेस पे आ जाएंगे. लाई फ्लैट ऑन इट, बिल्कुल फ्लैट लेटे रहेंगे. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और फिर अपने हाथ पैर मार के वो पूल के कोने में आ जाएंगे. इनको स्विमिंग तो आती नहीं थी. ही हैड सीन पीपल स्विमिंग, तो ही न्यू कि बस थोड़ा सा स्टेबल सा रहना पानी पे. एंड ही नीड्स टू मूव हिज हैंड्स एंड फीट एंड देन हिल बी सेफ. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. ही सेज जब वो नीचे पानी में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कितना लंबा डिस्टेंस है. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. इनके लिए वो 9 feet 90 feet के जितना लग रहे थे डेप्थ. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. इनकी लंग्स में भी पानी भर गया था. इनको लग रहा था कि लंग्स बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी. बट वेन माई फीट हिट बॉटम I summoned means gathered all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही इनके पैर फ्लोर पे टच हुए पूल के, राइट, इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर की और इन्होंने पूरा एक स्प्रिंग मीन्स जंप, ऊपर को जंप किया अपनी पूरी एनर्जी के साथ. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक. बॉब मीन्स फ्लोट. कॉक होता है जैसे बॉटल का ढक्कन होता है. इनको लगा कि मैं ऐसे जंप करके ऊपर आऊँगा और जैसे एक बॉटल का ढक्कन पानी में ऊपर फ्लोट करता है तो ही विल ऑल्सो फ्लोट इन द सेम वे लाइक अ कॉक. इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली. मैं बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. ये कहते हैं मैंने अपनी आँखें खोली पूल के अंदर ही और मुझे सिर्फ पानी दिखा और कुछ नहीं दिखा.
water that had a dirty yellow tinge to it. When he opened his eyes in the water, he saw there was water all around. और वो पानी कैसा था जिसमें dirty yellow tinge means हल्का सा कलर था, right? I grew panicky. Panicky means fearful. Writer डर गए. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. ये थोड़ा सा और ऊपर को गए तो इन्होंने सोचा कोई रोप मेरे हाथ में आ जाएगी, लेकिन इनके हाथ में सिर्फ पानी आया. आई वॉज सफोकेटिंग. इनका दम घुट रहा था. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट. राइटर कहते हैं मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. ये जब ऊपर आए तो इनकी आईज़ और नोज़ तो बाहर आ गए लेकिन माउथ पानी से बाहर नहीं आ पाया. आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर. फ्लेल्ड इज ही ट्राई टू यूज़ हिज हैंड्स एंड फीट. हाथ पैर मारने की कोशिश की एट द सर्फेस ऑफ द वाटर. स्वॉलोड एंड चोक्ड. और वाटर इन्होंने स्वॉलो किया, पानी इनके मुंह में जा रहा है. एंड इट वॉज चोकिंग हिम. इनका दम घुट रहा था. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स. राइटर ने देखा था कि जब स्विमिंग करते हैं लोग तो उनकी लेग्स पानी के ऊपर होती हैं, तो इन्होंने भी कोशिश की कि लेग्स को पानी के ऊपर लेके आऊँ, लेकिन इनको लगा कि उनकी लेग्स तो फ्रीज़ हो गई हैं और दे वर हैंगिंग एज डेड वेट्स. जैसे सिर्फ भार है लेग्स पे, वो ऊपर ही नहीं आ पा रही हैं. पैरालाइज्ड एंड रिजिड. पैरालिसिस डिजीज़ से ये पैरालाइज्ड आया है. जैसे पैरालिसिस मेक्स वन पार्ट ऑफ योर बॉडी totally numb, right? You're not able to, that part of the body doesn't work. तो इनकी legs भी बिल्कुल paralyzed हो गई थी. They were not moving and rigid, hard. A great force was pulling me under. इनको लग रहा था जैसे एक फोर्स है, ऑफ कोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उनको नीचे पानी में फिर से खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी. राइटर कहते हैं सिर्फ पानी ने मेरी आवाज़ सुनी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. ये फिर से मैं पानी के नीचे जाने लग गया. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. राइट, ही वॉज स्ट्रैकिंग अगेंस्ट द वाटर. पानी से टकरा रहे थे जैसे नीचे जा रहे थे. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरिजिस्टिबल फोर्स. एक्सपेंडिंग यहाँ मतलब है स्पेंडिंग. ही वॉज स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ. इनकी जितनी ताकत थी वो उसको यूज़ कर रहे थे. एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स. नाइटमेयर इज़ अ बैड ड्रीम, राइट? जैसे हमें कोई बुरा सपना आता है, बुरे सपने में हमें कोई अटैक कर रहा है या हमने कोई भूत देख लिया, तो हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं, राइट? दैट स्ट्रेंथ इज़ एन इरिजिस्टिबल फोर्स. इरिजिस्टिबल जिसको रोका नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड. तो इन्होंने भी, ही ऑल्सो स्पेंट, राइट, ऑल हिज स्ट्रेंथ. जैसे कि कोई बुरे सपने में अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करता है, राइट? एन अनस्टॉपेबल फोर्स ही यूज्ड. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. ये कह रहे हैं इनको सांस नहीं आ रही थी. माई लंग्स एक्ड. लंग्स में पेन हो रही थी. माई हेड थ्रॉब्ड. थ्रॉब्ड इज कंटिन्यूसली बीटिंग. कोई चीज़ अगर बार बार इज़ बीटिंग अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, तो इनको सिर में फ्लैशेस में ऐसा लग रहा था कुछ मूवमेंट है, कोई सिर पे जैसे कोई बीट कर रहा है. आई वॉज गेटिंग डिज़ी. डिज़ी मतलब चक्कर आना. मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी. लेकिन अभी भी ये सेंसेस में थे. इनको वो अपना प्लान याद था. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस. कि जैसे ही मैं बॉटम को टच करूँगा दोबारा से जंप ऊपर को करूँगा और कॉक के जैसे, बॉटल के ढक्कन के जैसे ऊपर सरफेस पे आ जाऊँगा, फ्लोट करूँगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स. थ्रैश भी वही बीटिंग होता है. आई विल बीट वाटर विद माई हैंड्स एंड फीट, और मैं ऊपर स्विम करूँगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ़. ऐसे करके मैं किनारे पे पहुँच जाऊँगा पूल के और सेफ़ हो जाऊँगा, बच जाऊँगा. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. राइटर को लगा कि वो तो नीचे ही जाते जा रहे हैं और कोई एंड ही नहीं हो रहा. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. इन्होंने फिर नीचे जाके आंखें खोली तो इनको फिर वही येलोइश पानी नज़र आ रहा है विद अ डर्टी टिंज. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. और जितना डेप्थ में नीचे गए तो वो वहाँ पे, क्योंकि सनलाइट कैन नॉट रीच, तो वो वहाँ और ज़्यादा डार्कनेस थी. तो ऐसा पानी था जिसके आर पार कुछ दिख नहीं सकता था.
एंड देन sheer stark terror seized me. Sheer means only, stark means extreme terror seized me. इनको बहुत भयानक डर ने जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा डर था जिसको आप समझ नहीं सकते. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर, ऐसा डर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो वैसा डर था जिसको वो आदमी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है. ओनली अ पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन दैट टेरर कैन एक्सपीरियंस द इंटेंसिटी ऑफ दैट टेरर. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. राइटर सेज कि मैं पानी में चिल्ला रहा था. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. पैरालाइज्ड, he couldn't move, right, underwater. He was stiff. Stiff means hard. Rigid with fear. बिल्कुल हार्ड हो गए थे डर के. राइट, स्विमिंग करने के लिए आपको यू नीड टू कीप योर आर्म्स एंड लेग्स वेरी लूज, बट ये इनकी बॉडी बिल्कुल हार्ड हो गई थी, स्टिफ, विदाउट एनी मूवमेंट. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. राइटर कहते हैं इनको लग रहा था कि जो ये चिल्ला रहे थे वो भी इनके गले में फ्रीज हो गई थी, आवाज़ भी बाहर नहीं आ पा रही थी. ओनली माई हार्ट and the pounding in my head said that I was still alive. He could feel only two things, that his heart was beating, and second, the pounding in my head, the beating, the throbbing in his head. जो सिर में इनको लग रहा था जैसे कुछ flashes हो रहे हैं, right? तो ये दोनों चीज़ें इनको बस रिमाइंड करा रही थी कि अभी ज़िंदा हैं. And then in the midst of the terror came a touch of reason. Midst mean in the middle of the terror came a touch of reason, sensibility. उस डर में इनको एक थोड़ी समझदारी की बात याद आई. I must remember to jump when I hit the bottom. कि जब जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे टच होंगे मुझे फिर से जंप करना है. At last I felt the tiles under me. Finally मुझे टाइल्स फील हुई पैरों पे, पैरों के नीचे. My toes reached out as if to grab them. पैरों के जो अंगूठे होते हैं ना, as if to grab the tiles, right? They reached out to the tiles. I jumped with everything I had. और राइटर ने दोबारा सेकेंड टाइम जितनी स्ट्रेंथ वो लगा सकते थे, यूजिंग दैट ही जम्प्ड अपवर्ड्स. बट द जम्प मेड नो डिफरेंस. लेकिन ये जो जंप थी इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स. कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पानी अभी भी इनके आसपास था. इन्होंने कोशिश की कि कोई रोप मिल जाए, कोई लैडर, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर विंग्स इनके हाथ में आ जाए. नथिंग बट वाटर. लेकिन ऐसा कुछ इनके हाथ में नहीं आया सिवाय पानी के. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. ये इनको लग रहा था कि ये मास है, ये जो पानी है ना येलोविश, इसने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. स्टार्क मीन्स एक्सट्रीम टेरर ने इनको बिल्कुल होल्ड कर लिया, ग्रैब कर लिया. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे लोगों को जब इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो वो पीपल हु अनफॉर्चुनेटली लूज़ देयर लाइफ बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसमें क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो उनको ग्रिप में ले लेता है अपनी, एंड दे कैनॉट कम आउट ऑफ दैट. जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, सिमिलरली राइटर कहते हैं कि वो जो टेरर था उसने मुझे अपनी ग्रिप में ले लिया था. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. शूक मीन्स मैं काँप रहा था, ट्रेम्बल्ड सेम थिंग, डर के मारे मैं काँप रहा था. माई आर्म्स वुड नॉट मूव. मेरी आर्म्स मूव नहीं कर रही थी. माई लेग्स वुड नॉट मूव. लेग्स भी मूव नहीं कर रही थी. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपन्ड. मैंने हेल्प के लिए आवाज़ लगानी चाहिए, ठीक है, मैंने अपनी मदर को बुलाना चाहा. छोटे बच्चे जब होते हैं, वेन एवर दे आर इन अ ट्रबल सम सिचुएशन, या जब बड़े भी हो जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी मदर की याद आती है, राइट. तो सिमिलरली राइटर को भी अपनी मम्मी की याद आई. वो अपनी मम्मी को बुलाना चाहते थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग हैपन्ड. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. राइटर कहते हैं फिर एक बड़ी अजीब बात हुई.
मुझे लाइट नज़र आई. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येल्लो वाटर. ऑफुल मीन्स बैड. उस येल्लो वाटर से मैं बाहर आ रहा था. एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. आईज बाहर आ गई थी पानी के, और कहते हैं नोज़ भी ऑलमोस्ट पानी के बाहर आ ही गई थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. अनफॉर्चुनेटली राइटर अभी भी पानी से बाहर नहीं आ पाए, एंड अब ये थर्ड टाइम पानी में नीचे जाने लगे थे. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. स्विमिंग में पानी में जब लोग स्विमिंग करते हैं तो उनको एयर इनहेल करनी होती है ना. इन्होंने भी कोशिश की, राइट, टू सक एयर, लेकिन इनको सिर्फ पानी मिल रहा है. पानी वॉज, ही वॉज swallowing वाटर ओनली. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. जो अभी येलोइश लाइट दिखी थी इनको, अब वो भी जा रही थी, बिकॉज वो अब दोबारा पूल में नीचे जा रहे थे. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. एफर्ट जो कोशिश थी बाहर आने की, इट ऑल स्टॉप्ड. आई रिलैक्स्ड. राइटर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए कि अब कुछ नहीं करना, निश्चिंत. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. लिम्प मीन्स लाइफलेस. इनको लग रहा था जैसे लेग्स में भी जान नहीं है. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और लग रहा था जैसे ब्रेन में बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा. इट वाइप्ड आउट फियर. ये जो फीलिंग थी, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अ पर्सन हु इज़ नियरिंग डेथ ऑल्सो, ही ऑल्सो एक्सपीरियंसेस सच काइंड ऑफ सेरेनिटी, कामनेस, जहाँ किसी को किसी चीज़ का डर नहीं रहता. तो राइटर कहता है कि वो जो फीलिंग थी, मुझे कुछ दिमाग में ब्लैकआउट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने इट वाइप्ड आउट माई फियर. उसने मेरे सारे डर को मिटा दिया. इट वाइप्ड आउट टेरर. अगेन सेम थिंग. देयर वॉज नो मोर पैनिक. मेरे में मुझे और कोई डर नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. वो जो मेरी मेंटल स्टेट थी ना, वो बहुत ज़्यादा शांत थी. आई वॉज एट पीस. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. मुझे लगा अब किसी चीज़ से डरना नहीं है. दिस इज़ नाइस. बहुत अच्छा लग रहा है. टू बी ड्राउजी, कि नींद आ रही है. टू गो टू स्लीप, कि अब सो जाना है. नो नीड टू जम्प. कोई एफर्ट नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा जंप करने की. टू टायर्ड टू जंप, कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं कोशिश ही नहीं कर सकता, या मैं जंप ही नहीं कर सकता. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. बहुत अच्छा लग रहा है कि पानी में मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ. टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस. स्पेस तो नहीं है, खैर वो पानी में आप फ्लोट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग लग रही है. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. ऐसा लगता है किसी की टेंडर आर्म्स, सॉफ्ट आर्म्स हैं मेरे आसपास. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. सॉफ्ट आर्म्स, राइट. कंफर्टिंग आर्म्स, जैसे कि मम्मी की हैं, मदर की हैं. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. राइटर को लगा अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे सो जाना चाहिए. आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन मीन्स अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जहाँ आदमी सब कुछ भूल जाता है. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. मुझे लगा अब मैं सब कुछ भूल रहा हूँ और मेरी जो ज़िंदगी का पर्दा है वो गिर गया है. मुझे लगा परहैप्स कि नाउ माई एंड हैज़ कम. ही इज़ गोइंग टू डाई. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. राइटर कहते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मुझे याद है वो ये कि मैं पूल के बाहर on my stomach लेटा हुआ था and I was vomiting. The chap that threw me in was saying, chap means boy, वो जो लड़का जिसने मुझे धक्का दिया था वो मुझे उसने बोला, but I was only fooling, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. Someone said, फिर किसी ने बोला, the kid nearly died, कि ये बच्चा ऑलमोस्ट मरने ही वाला था. बी ऑल राइट नाउ, चलो अब बी नॉर्मल, बी ओके. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. लॉकर रूम जहाँ पे लोग अपने कॉस्ट्यूम, अपने कपड़े रखते हैं चेंज के लिए. लेट्स कैरी हिम देयर. सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद या काफ़ी घंटों के बाद, आई वॉकड होम. राइटर कहते हैं मैं घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. He has shown his physical state कि he was feeling weak, कमज़ोर सा फील कर रहे थे. एंड ही वॉज शेकिंग ऑल्सो, काँप रहे थे. आई shook एंड क्राइड when I lay on my bed. कह रहे जब मैं अपने बेड पे लेटा मैं तब भी रो रहा था और शेक कर रहा था. आई couldn't eat that night.
इतना ज़्यादा डर गए थे कि खाना भी नहीं खा पाए. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. हॉन्टिंग होता है विच गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन. तो वो डर उनको बार बार नॉक करता था या बार बार याद आता था. इट वॉज देयर इन हिज हार्ट. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. एक्सर्शन होता है थकान, राइट, फटीग. जैसे ये थोड़ा सा थकते थे तो अपसेट हो जाते थे. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड स्टिक टू माई स्टमक. वॉबली मीन्स शेकिंग. जैसे ये थक जाते थे, वीकनेस फील करते थे, तो इनकी नीज हिलने लग जाती थी. एंड सिक टू माई स्टमक. सिक मीन्स इनके स्टमक अपसेट भी हो जाता था टेंशन की वजह से. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. ये जो मिस एडवेंचर हुआ, द एक्सीडेंट विच हैपन विद हिम, इसकी वजह से क्या हुआ, ही सेज ये दोबारा कभी पूल में नहीं गए. आई फियर्ड वाटर. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. पानी से डरने लगे और कहते हैं कि जब भी मुझे पॉसिबल होता था पानी को अवॉइड करना, मैं अवॉइड ही करता था. A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I went to get into them. फिर कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड्स के पानी के बारे में पता चला, राइट, तो मैं वहाँ उस पानी में जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं पानी में गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और जब भी मुझे मौका मिला, जैसे जब मैं वेडिंग होता है टू वॉक थ्रू वाटर, टाइटन रिवर में या बम्पिंग रिवर में या फॉर अ बाथ वार्म लेक में गया ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, ये इनमें जब भी गए तो वो जो टेरर था पानी का, इट यूज टू गेट रिवाइव्ड इन हिज मेमोरी. ही इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. ये कहते हैं वो डर इनको पूरा अपनी ग्रिप में ले लेता था, वही जो बचपन का डर था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज. लेग्स बिल्कुल मूव नहीं करती थी, बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी. एंड आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. आईसी मीन्स चिलिंग हॉरर, राइट, टेरिबल हॉरर, वो मेरे दिल में आ जाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. ये जो हैंडीकैप था, ये जो इनेबिलिटी थी राइटर की, राइट, टू बी कंफर्टेबल वेन एवर ही वॉज इन वाटर, ये हैंडीकैप उनके साथ रहा जैसे जैसे साल गुजरते गए. इन कनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन. कनूज आर स्मॉल बोट्स. ये कहते हैं जब मैं कनूज में जाता था मेन लेक्स पे, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन. लैंड लॉक्ड मीन्स जो लैंड के पास पास रहती है. सैल्मन इज़ द नेम ऑफ अ फिश. तो जब भी ये वो जो सैल्मन फिश के लिए फिशिंग करने जाते थे मेन लेक्स पे, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर. बास इज़ अगेन अ काइंड ऑफ फ़िश. जब भी ये फ़िश पकड़ने जाते थे न्यू हैम्पशायर में, या फिर ट्राउट फिशिंग. ट्राउट इज़ अगेन द नेम ऑफ अ फ़िश. ट्राउट फिश पकड़ने जब जाते थे ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस, ये रिवर्स के नाम हैं इन ओरेगॉन. ओरेगॉन इज़ द स्टेट इन द यूएसए. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया. तो ये जब भी कोलम्बिया रिवर पे जब सैल्मन फ़िश पकड़ने जाते थे, या फिर एट बम्पिंग लेक इन दी कैस्केड्स. कैस्केड्स एक माउंटेन रेंज है इन दी यूएसए. वहाँ पे जो बम्पिंग लेक का नाम है, वहाँ पे जब सैल्मन फ़िश पकड़ने जाते थे, वेर एवर आई वेंट, ये कहते हैं जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. हॉन्टिंग मीन्स वही जो रिपीट होता है बार बार. वो जो फियर था वो पानी का, वो बार बार मुझे मेरे साथ रहा. It ruined my, these lines are very important, how he suffered on account of his fear of water. It ruined my fishing trips. ये जो फिश पकड़ने का जो भी इनका ट्रिप होता था, इट ruined that, वो भी ख़राब हो जाता था. It deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो वाटर स्पोर्ट्स ये जो हैं, ये बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर पाते थे, ना ही कनूइंग कर पाते थे रिवर्स में, पानी में, ना ही बोटिंग कर पाते थे, और स्विमिंग भी. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. जब राइटर बड़े हो गए तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि इस फियर को मैं ओवरकम कर पाऊँ.
बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. इनको लगता था वो डर इनको अपनी ग्रिप में अच्छे से ग्रैब कर लेता है. फाइनली 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. Again, this is very important, how he made up his mind and how he learned to swim in order to overcome his fear of water. तो 1 अक्टूबर को इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और उनसे स्विमिंग सीखने लग गए. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. आपको ये सब याद रखना है, उनका रूटीन, हाउ ही लर्न टू स्विम. तो पूल में जाते थे, 5 दिन जाते थे, एंड एन आवर ईच डे. हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. इंस्ट्रक्टर ने इनके वेस्ट पे एक बेल्ट बांधी हुई थी. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. पूल के ऊपर एक केबल थी और उसमें एक पुली लगाई हुई थी. पुली जैसे वेल्स में होता है ना, कुएं में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर से रोप जाती है, तो वैसे एक पुली लगाई हुई थी केबल के ऊपर. एंड ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप. तो एक एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था उस रोप का, रस्सी का, और एक एंड राइटर के अराउंड बंधा हुआ था उनकी बेल्ट के साथ. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. तो दिस इज़ हाउ द राइटर वॉज स्विमिंग. पानी की लेंथ एंड ब्रेथ ये स्विम करते थे, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. जब भी ये स्विमिंग करते थे, थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा डर इनको फिर से हॉन्ट करता था, पकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर. जैसे ही इंस्ट्रक्टर वो जो रोप जिससे ये बंधे हुए थे उसको थोड़ा सा लूज़ करते तो इनको लगता था ये पानी के अंदर चले गए, डूबने लगे हैं. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज. और वो डर फिर से इनके दिल में आ जाता था और लेग्स फिर से फ्रीज हो जाती थी. राइट, legs didn't work. It was 3 months before the tension began to slack. Slack means loosen. कम से कम 3 महीने लग गए इनको अपनी वो टेंशन, वो डर को थोड़ा कम करने में. Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उन्होंने सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने इनको, कि कैसे मुंह को पानी के अंदर कैसे सांस लेनी है और कैसे एक्सेल इज़ टू ब्रीद आउट इन वाटर, पानी के अंदर. एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल. और कैसे नोज़ को बाहर निकाल के इनहेल करना है ऑक्सीजन. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. इतनी इन्होंने प्रैक्टिस की. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. और धीरे धीरे करके ये कहते हैं कि वो जो डर था, जैसे इनका सिर पानी के अंदर जाता था, वो जो डर आता था इनके मन में, वो धीरे धीरे चला गया. इट वैनिश्ड. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स. स्विमिंग करने के लिए लेग बीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो राइटर को पूल के साइड में उनको बोलते थे पकड़ो, एंड द एज ऑफ द पूल, और ही यूज्ड टू मेक हिम प्रैक्टिस किकिंग in water with his legs. For weeks I did just that. और कहते हैं कुछ हफ्तों तक मैंने सिर्फ वही किया. At first my legs refused to work but they gradually relaxed. पहले मेरी legs काम नहीं कर रही थी, फिर धीरे धीरे legs started relaxing. legs को आपको बहुत लूज़ करना पड़ता है. अगर legs में टेंशन है, राइट, आप नर्वस हो तो आप स्विमिंग नहीं कर सकते. तो धीरे धीरे legs started becoming normal, easy, and finally I could command them. And writer says finally he could control his legs, control the movement of his legs. He could beat his legs in water. Thus piece by piece. तो इस तरह एक एक पीस करके ही built a swimmer. उन्होंने मुझे एक स्विमर बना दिया. And when he had perfected each piece, जब मेरा एक एक पीस उन्होंने परफेक्ट कर दिया, when he ensured that I can swim on my own, he put them together into an integrated whole. सबको ज्वाइन किया, मैं एक स्विमर बन गया. In April he said now you can swim. अप्रैल में उन्होंने बोला आप स्विम कर सकते हो, डाइव, जंप करो.
Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke. There are various strokes in swimming. तो इन्होंने बोला crawl stroke करो. I did. The instructor was finished. Instructor was finished means his job was finished now, right? But I was not finished. Writer कहते हैं लेकिन my job, my work was still not over. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. राइटर अभी भी सोच रहे थे कि अभी तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर थे तो ही वॉज एबल टू स्विम, लेकिन अगर मैं पूल में अकेला अगर कभी रहूं तब मैं क्या स्विमिंग कर पाऊंगा. आई ट्राइड इट. मैंने कोशिश की अकेले स्विमिंग करने की. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. लेंथ ऑफ द पूल मैंने पूरा स्विम किया अप एंड डाउन. टाइनी वेस्टिजेस. वेस्टिजेस मीन्स ट्रेसेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. जो इनके बचपन का जो वो फियर था एम्बेडेड इन हिज माइंड, उसके थोड़े थोड़े ट्रेसेस तो फिर भी आए इनके माइंड में. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर. लेकिन कहते हैं अब मैं फ्राउन गुस्से में आके उस टेरर को कह सकता था. ट्राइंग टू स्केयर मी. ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो डर. वेल हेयर इज़ टू यू. लुक. तो ये लो, देखो तुम, ये तुम्हारे लिए है. एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. और मैं दोबारा फिर से पूल की लेंथ स्विम करने के लिए चला जाता. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. जुलाई तक मैं ऐसी प्रैक्टिस करता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. राइटर कहते हैं मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था इन माई माइंड. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. सो आई वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर. मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सारा टेरर अभी मेरे माइंड से चला गया है. सो इन ऑर्डर टू टेस्ट माई सेल्फ, राइट, मैं कहाँ गया, मैं लेक वेंटफोर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर. सो ये लेक वेंटफोर्थ गए इन न्यू हैम्पशायर. And he dived off. Dived off means he jumped off a dock at Triggs Island. Dock is the place where ships stand for loading, unloading and they repair also. At Triggs Island, वहाँ पे ये पानी में गए, ठीक है, to check whether he was able to swim comfortably. And he swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. ये 2 miles इन्होंने swim किया. And he reached Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. ये जितने भी स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं इन्होंने सब यूज़ किए वाइल स्विमिंग. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. ये कहते हैं सिर्फ एक बार ही वो जो टेरर था वो वापस आया, टेरर ऑफ वाटर, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक. वो भी कब, जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. मैंने अपना जब फेस पानी में अंदर डाला तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया, सिर्फ बॉटमलेस वाटर. बॉटमलेस जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, राइट, कोई एंड ही नहीं है, बस पानी पानी नज़र आया था मुझे जब. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. मिनिएचर मीन्स वेरी लेस क्वान्टिटी. वो डर आया तो मेरे माइंड में, बट वेरी लेस. आई लाफ्ड एंड सेड. मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, सी द वर्ड्स आर रिटन इन इटैलिक्स. हाँ जी मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. आप क्या सोचते हो आप मेरे साथ क्या कर सकते हो. एंड इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. और जो मिस्टर टेरर थे, वो जो डर था वो भाग गया और मैं स्विम करता रहा. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. राइटर कहते हैं रेजिडुअल मीन्स लेफ्ट ओवर. अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट था, राइट, फियर ऑफ वाटर को लेके. एंड स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ऑल द प्लेसेस वेयर ही वेंट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. सो हियर एट लास्ट ही सेज, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन. टाइटन इज़ द नेम ऑफ द रिवर. To Conrad, name of the river and the place also, to Conrad Meadows. Meadows are grasslands. See all the जितने भी words capital में लिखे हुए हैं, they are all names of places. मैं Conrad Meadows तक गया. अब the Conrad Creek Trail. Conrad Creek, वहाँ एक stream of water है. Trail means path. उस रास्ते पे गया. To Med Glacier,
राइट अगेन मेरी ग्लेशियर जो ओपन ग्रासलैंड है वहाँ तक गया एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। वो जो हाई मेडो थे, ग्रासलैंड था, उसकी साइड पे, ठीक है, वार्म लेक के साइड पे मैंने वहाँ पे अपना कैंप लगाया, टेंट लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड मीन्स आई रिमूव्ड माई क्लोथ्स, डाइव्ड इनटू द लेक में छलांग लगाई एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उस लेक के दूसरे किनारे तक गया और वापस आ गया, जस्ट एज डूक कॉर्पोरन यूज टू डू। डूक कॉर्पोरन वॉज ऑल्सो अ स्विमर, ये भी एक स्विमर थे, एंड ही टू यूज टू स्विम अक्रॉस फ्रॉम वन शोर टू अनदर, राइट, एंड कम बैक। तो वो भी ऐसे ही करते थे और इन्हीं को इमिटेट करते हुए राइटर ने भी ऐसा ही किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड व्हेन ही कुड डू इट, ये खुशी से चिल्लाए, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और जो गिलबर्ट पीक थी, वो जो माउंटेन था, वो ऐसा लग रहा था कि उसने इनकी जो हंसी को दोबारा से रिफ्लेक्ट किया, राइट। एंड आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, राइटर कहते हैं फाइनली मैंने जो मेरा फियर था वाटर का, उसको कॉन्कर कर लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। राइटर कहते हैं ये जो एक्सपीरियंस था इनका ऑफ ओवरकमिंग वाटर, ये इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। इट हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर हिम, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर। राइटर कहते हैं सिर्फ वही लोग जिन्होंने ऐसा कुछ स्टार्क एक्सट्रीम टेरर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और उसको कॉन्कर किया है, बाद में ओवरकम किया है, ओनली दे कैन अप्रिशिएट इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट। इन डेथ देयर इज़ पीस, very important lines. In death there is peace, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, right? ऐसा कहा जाता है कि जब डेथ हो गई, जब किसी की डेथ होती है, हम लिखते हैं ना रेस्ट इन पीस, when one dies there is peace, ठीक है। देयर इज़ टेरर, डर किस चीज़ में है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जब हम डेथ से डरने लग जाते हैं, देन ओनली वी आर ग्रिप्ड विद अ फियर ऑफ डेथ। व्हेन वन डाइज देयर इज़ पीस आफ्टर डेथ, सो देयर इज़ फियर, और ओनली व्हेन यू स्टार्ट फियरिंग डेथ, एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। रोजवेल्ट को ये जो 32nd प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनको ये पता था जब उन्होंने ये बोला कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द लेसन, कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना है कि हमें लाइफ में कोई या किसी चीज़ का फियर ना हो जाए। आई रिपीट, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ इस चीज़ से डरना है कि हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ का डर ना बिठा लें या किसी चीज़ से डरने ना लग जाएं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर व्हाट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। राइटर कहते हैं क्योंकि मैंने ये दोनों सेंसेशन, ये दोनों फीलिंग ऑब्ज़र्व की थी, या ही हैड अंडरगॉन, क्या कि सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि व्हेन इन द पूल ही हैड लॉस्ट ऑल होप एंड ही फेल्ट ही वुड डाई। तो वो जो सेंसेशन होती है कि आपकी डेथ होने वाली है, राइट, यू आर नियरिंग योर डेथ, और जो टेरर, वो डर, ठीक है, जो आपके माइंड में प्रोड्यूस हो सकता है फॉर द फियर ऑफ डेथ। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। विल होता है आपकी जो डिटर्मिनेशन होता है, पक्का इरादा होता है लाइफ में ज़िंदा रहने का, फाइट करने का, वो उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, वो और ज़्यादा इंटेंसिव हो जाती है कि हाँ मुझे फ़ाइट करना है इस चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फाइनली मुझे लगा कि मैं आई एम फ्री नाउ, आई एम रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। ट्रेल्स मीन्स पाथ, मैं कोई भी पाथ, कोई भी रास्ता चल सकता हूँ, एंड क्लाइम द पीक्स, आई कैन क्लाइम द माउंटेन पीक्स ऑल्सो, मैं पहाड़ों पे भी चल सकता हूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर,
ब्रश असाइड फियर, जैसे हमारे अगर कपड़ों में मिट्टी लग जाए तो हम उसको वी डस्ट इट ऑफ, राइट, हम उसको झाड़ देते हैं ना, तो वैसे ही फियर को भी आई कैन ब्रश इट असाइड, फियर को भी अब अलग कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ अपनी लाइफ से, अपने माइंडसेट से। थैंक यू।